10ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উদযাপনের জন্য আজকের দিনটা সিপিডি আর ইন্ডিয়া অপেক্ষা করছে। দেখুন, এটা তো আমাদের গর্বের দিন, যেহেতু আমরা মানবাধিকার কর্মী, মানবাধিকার সেন্টার ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রিকোয়ারমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, যেটা জনগণ বা সবাই সিপিডি আর ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস মেনে চলি। আমরা জাতির উদ্দেশ্যে একটাই জিনিস বলবো যে আপনারা মানব অধিকারটা শুধু জানেন, কারণ মানব অধিকার একমাত্র আপনাদের উপায়। যে মানব অধিকার যদি জানেন তাহলে আপনারা জানবেন সংবিধানের ধারা অনুযায়ী আপনাকে কী কী রাইট দেওয়া হচ্ছে, আপনাদের মৌলিক অধিকার অন্য স্বাস্থ্য মানুষের সেগুলো আপনারা কীভাবে পাবেন। আর মানবাধিকার সংরক্ষণ তাহলে আপনাদের মানবাধিকারগুলো সুনিশ্চিত হয়। কারণ মানুষের জীবনে মৃত্যুটা বড় সত্য, এটা হচ্ছে সবথেকে বড় সত্য হচ্ছে মৃত্যু। আর মৃত্যু হওয়ার আগেও কি আপনাকে যে দুটো জিনিস নিয়ে সাথে করে চলতে হয়, এক হচ্ছে আপনার মেডিকেল হেলথ। কারণ আপনি কোনো বিত্তবান থেকে বিত্তবান মানুষ বলতে পারবে না যে আমার শরীর খারাপ হবে না, আমার কোনো কিছু হবে। আর একটা সমস্যা কখনো বলে আসে না, যখন তখন কোনো না কোনো মুহূর্তে কোনো না কোনো রূপ নিয়ে সমস্যা চলে আসে। আর যখন সমস্যা আসে তখন বোঝা যায় আপন কি আর পর। তখন আপনারা নানা জায়গায় ছোটেন, রাজনৈতিক মহলে ছোটেন, পাড়া প্রতিবেশীর কাছে ছোটেন, আপনারা পুলিশের কাছে ছোটেন, সব জায়গা থেকে আপনারা বিমুখ। তাহলে আপনাদের এই অধিকার নিয়ে কারা লড়াই করে? এই অধিকার লড়াই করার জন্য একটাই প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে মানব। এবং আমরা নৈতিকভাবে দীর্ঘদিন ধরে মানব অধিকার নিয়ে কাজ করছি। আপনারা দেখেছেন আমাদের এই মঞ্চে আছে চিফ জাস্টিস থেকে শুরু করে প্রচুর অ্যাডভোকেট এবং আমাদের ল সেলের যোগ্যতর যত অ্যাডভোকেটরা আছেন মাননীয়, তারা সবাই এসেছেন। এবং আমাদের আইএস আইপিএস অফিসাররাও উপস্থিত ছিলেন, এসিপি স্যাররাও উপস্থিত ছিলেন, আমাদের মানবাধিকার কর্মী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং যাবতীয় যত মানুষ যারা মানব অধিকার নিয়ে কাজ করছে, অভিনেতা অভিনেত্রী যারা আমাদের সাথে জুড়ে রয়েছে, তারা সবাই কিন্তু আজকে মানব অধিকারের এই মঞ্চ থেকে মানুষকে একটাই বার্তা দিয়েছে যে আপনারা মানব অধিকারটা জানুন, মানব অধিকারটা শিখুন। মানে একমাত্র উপায় এই মানব অধিকার। যদি মানব অধিকার আপনারা শিখে যান তাহলে আপনাদের মানব অধিকারগুলো সুনিশ্চিত হবে। আর এই মানব অধিকারের উপলক্ষে আপনাদেরকে একটা বার্তা দিতে চাই যে আপনারা যে কোনো মানবাধিকার সংগঠন দেখলেই তাকে বিশ্বাস করার আগে 10বার ভাববেন। কারণ কি, তাদের ওয়েবসাইটটা চেক করে নেবেন। আর যে সংগঠনগুলো দেখবেন এমএসএমই বা এমসিএ বলে যে রেজিস্ট্রেশন দিল্লির থেকে কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন যেগুলো বিজনেস চলার জন্য দেওয়া হয়, সেই রেজিস্ট্রেশন নিয়ে মানবাধিকার সংগঠনগুলো চালাচ্ছে, সেই সংগঠনগুলো পুরোপুরি অনৈতিক। সেই অনৈতিক সংগঠনের হাতে বা তাদের ছাসায় কোনো সময় আসবেন না। তাদের আপনাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন তো হবেই এবং আপনারা পরে বিপাকে পড়তে পারেন, এটা একটা বিষয়। আর দ্বিতীয় কথা যে আমরা মানবাধিকারে যারা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে যারা কাজ করে চলেছে, তাদেরকে এই সংগঠন থেকে আমরা সম্মান দিতে পেরে এবং তাদেরকে ফেলিসিটেট করতে পেরে আমরা খুব গর্বিত। আজকে আমরা দেখলাম বিশাল একটা বিস্তৃতি লাভ করেছে সিপিডি আর ইন্ডিয়া। কতটা বিস্তৃতি লাভ করেছে? দেখুন, আমাদের সারা পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলা থেকে আজকে বহু মানুষ এসেছে, বাসে করে, কেউ টেম্পো করে, কেউ ট্রেনে, কেউ ট্রাকে করে, কেউ, কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষকে কিন্তু পয়সা দিয়ে বা খাবারের লোভ দেখিয়ে আনা হয় রাজনীতি করার জন্য। এটা যেটা হয়েছে সেটা যেসব মানুষরা এসেছে যারা মানবাধিকার করছে, জেলায় জেলায় মানবাধিকার করছে দায়িত্বে, সবাই সবার নেতৃত্বে তারা আজকে এসে উপস্থিত হয়েছে। এবং আমাদের ঝাড়খণ্ড থেকে শুরু করে, ইউপি থেকে শুরু করে, পাঞ্জাব থেকে শুরু করে, হরিয়ানা থেকে শুরু করে, উড়িষ্যা থেকে শুরু করে, সিকিম থেকে শুরু করে বহু জায়গা থেকে কিন্তু আজকে মানুষ এসে আমাদের উপস্থিত হয়েছে। যেখানে যেখানে আমাদের বোম্বে থেকেও মানুষ এসেছে, যারা যারা ধরুন আমাদের যেখানে যেখানে সংগঠন আছে, যারা যারা সংগঠন নেতৃত্ব দিচ্ছে, তারা আজকে উপস্থিত হয়েছে। কিভাবে যোগাযোগ করবে আপনার সাথে যদি একটু ফোন নাম্বারটা? দেখুন, আমাদের ওয়েবসাইট www.cpdrindia.com। আপনারা সেখানে গেলেই আপনি ওখানে আমাদের ফোন নাম্বার, আমাদের ডিটেল অ্যাড্রেস, কারা কারা জুড়ে আছেন, কীভাবে রয়েছে, কীভাবে সংগঠনে জুড়বেন, সব কিছু ওখানে পাবেন। এবং আপনারা আমার নাম্বার 9331223103 24 ঘন্টার পরিষেবার জন্য খোলা থাকে। এবং আপনার যদি মনে হয় আপনি এসে আমার সাথে যোগাযোগ করুন। আর বাকি আজকে তো মানে এই যে 3-4 মাসের যে কর্মযজ্ঞ আজকে সমাপ্তি হলো, আমরা আবার সামনের বছরের কর্মযজ্ঞে আবার লেগে পড়ব কাল থেকে। আর তার মধ্যেও আমাদের বহু অনুষ্ঠান, বহু কর্মসূচি হয়ে থাকে। তা আমাদের সঙ্গে আশিসজি রয়েছে, আমাদের সঙ্গে আমাদের সৌগতদা রয়েছেন, আমাদের সিংজি রয়েছেন, যিনি আমাদের অযোধ্যা ইউপি থেকে এসেছেন। আপনারা তার সঙ্গে কথা বলুন।
सबसे पहले आपका कहाँ से आप लोग आए हैं? मैं जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अच्छा मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। अच्छा नॉर्थ ईस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा के तौर पे मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। सर अभी आप कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत गरीबी है, इसके बारे में बताइए। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट में है गरीबी है, बहुत है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ की कमी है। हमारा एजुकेशन का कमी है, उसके ऊपर से फिर इंडस्ट्रियल का कमी है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है वहाँ पे, क्योंकि डेली बेसिस के हिसाब से जो एक इंसान को घर चलाने की जितनी पैसे की जरूरत होती है वो वहाँ पे क्लियर नहीं कर पाते सही तरीके से। और बेसिकली क्या है कि वहाँ पे मैं 80% बिल और वाश वगैरह लेके गए टी गार्डन के ऊपर डिपेंड करते हैं लोग वहाँ पे। तो वहाँ पे सैलरी वगैरह की मैं अभी गार्डन वगैरह का भी बहुत ज़्यादा गार्डन बंद हो जाते हैं, हज़ारों लेबर को खाने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको काम बंद हो जाता है। तो बहुत कुछ ऐसा है, तो ये सब चीज़ लेके भी हम लोग चल रहे हैं ताकि मतलब उनको हमारे तरफ से कुछ हेल्प हो सके। हाँ, अगर कोई हेल्प करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपके साथ? हाँ जी, अगर कोई हेल्प अगर करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, मैं अपना नंबर बोल रहा हूँ 9733155400। फिर से एक बार बोल रहा हूँ 9733155400। ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो इसे आप मुझे 24/7 कभी भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। सर से एक बार बात करो। हाँ, सर आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली सिक्किम से हूँ। मेरा नाम सिपिडिया कांडिया सिक्किम का प्रेसिडेंट। बेसिकली सिक्किम में क्या अभी आज के टाइम में एजुकेशन को लेके थोड़ा सा अवेयरनेस का काम हम लोग कर रहे हैं उस इलाके को। नॉट ओनली सिक्किम, दार्जिलिंग हुआ, कालिम्पोंग हुआ, जो भी नॉर्थ बंगाल से अटैच एरिया है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और सिक्किम और पहाड़ी राज्यों में अभी क्या चल रहा है, थोड़ा सा ड्रग एडिक्शन का थोड़ा मामला बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी संस्था के माध्यम से जितने भी आने वाले भविष्य उनको लाइफ स्किल्स का प्रोग्राम्स वगैरह वहाँ पे इंक्लूड करा के उनको सिखाना है कि लाइफ कैसे जिया जाता है। एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आपको आपकी रोल्स क्या है सोसाइटी, तो हम वो चीज़ को लेके हम शिक्षित करना चाहते हैं। साथ ही साथ मेरा अपना निजी फॉर्म भी है, हम लोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन चलाते हैं। वो फाउंडेशन से हम करियर काउंसलिंग हुआ, करियर गाइडेंस हुआ, और बहुत सारे लोग जो है बच्चे अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं। एक मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 12 पास किया है, अपना डिसीजन सही से नहीं ले पाता है, हम लोग उनको गाइड करते हैं डिसीजन लेने में। और साथ ही साथ में जैसे कि भारत सरकार की कुछ स्कॉलरशिप्स की स्कीम है और आपको एजुकेशन लोन्स वगैरह की स्कीम है, उसके माध्यम से हम लोग बच्चे को बाहर स्टेट से बाहर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इंटर कल्चर एक्सचेंज हो जाता है, नॉट ओनली स्टेट, हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी काम कर रहे हैं। और हमारी फॉर्म जो है जर्मनी में अभी बेसिकली फ्री एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग, जिसको हाउस बिल्डिंग बोला जाता है। और साथ ही साथ में हेल्थ केयर वर्कर्स की रिक्रूटमेंट चल रही है, और वो भी अच्छे तरीके से लोग उनको लेना चाह रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे स्टैंडर्ड देश में जाके अगर कोई अपना एक हैबिट बना ले, मान लीजिए 10 साल भी वहाँ रह के आए, तो कुछ ना कुछ आके यहाँ पे अपना इन्वायरमेंटल चेंजेस होगा, लोगों के सोच विचार में चेंजेस होगा, और लाइफ को लेके एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। तो उसी विषय को लेके हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन को लेके मैं ज़्यादा काम करता हूँ, और साथ ही साथ में वुमन इम्पावरमेंट को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और जितने भी वीकर सेक्शन की सोसाइटी है उनको प्रेरित करना चाहते हैं कि आप आगे आओ, आप लोग लाइफ में कुछ करो, सीखो। और वैसे सर ने बताया अभी कि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी गरीबी है, वहाँ पे क्या कि चाय बागान बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे जो बिजनेस की सिस्टम रहती है, और एकदम वहाँ पे पॉलिटिक्स का सिचुएशन भी उतना अच्छा नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि सब मिल के सोशली ये चीज़ को देखें और आने वाले जो भविष्य है उनको अच्छी तरीके से निर्धारित करें। और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हम लोग के साथ में जुड़ के एक अच्छा विचार के साथ में एक ह्यूमन बीइंग को हम लोग एडेप्टिव बनाए, अपनी सोसाइटी में रख के उनको अच्छा काम सिखाए, अच्छा लाइफ स्किल दें, बस इतना ही है। अगर कोई एनजीओ आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है तो क्या आप कोऑपरेट करेंगे? Definitely, we are always there to cooperate with any type of NGO, any type of social organization, any type of volunteer organization, and even self-help group also. तो उसके साथ हम लोग मिलके काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी हम अकेले हिंदुस्तान को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है विकसित भारत अभियान 2047 का, वो दौर में हम लोग सबको एक
एक होके चलना पड़ेगा, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू अ डिफरेंट डायमेंशन राइट नाउ। Right. तो हम लोग को भी अच्छी तरीके से ये चीज़ को ध्यान में रखना है और सही तरीके से ह्यूमन बीइंग को गाइड करना है, तभी जाके ह्यूमन राइट्स का कंजर्वेशन होगा। और लोग जब शिक्षित होंगे, सतर्क होंगे, तभी जाके बहुत सारी घटनाएं को जो है घटनाएं चल रही आज के टाइम में, रेप चल रहा है, ठीक है, बहुत सारा चीज़, ड्रग एडिक्शन चल रहा है, और मतलब आदमी का जो माइंड है पूरा नेगेटिवली इम्पैक्ट होकर रखा हुआ है। तो वो चीज़ को इराडिकेट करने में हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं इतने सालों से। एंड अगर सभी आके हम उनके साथ में जुड़ के काम करेंगे बहुत अच्छा है। हम तो चाहते हैं हर घर जुड़े, हर परिवार जुड़े, हर राष्ट्र जुड़े हम लोग के साथ में, क्योंकि देश अपना है, देश को प्यार करना चाहिए। और आदमी जब तक जीता है, मरने के बाद उसका एक वैल्यूएशन भी होना चाहिए। तो इसी काम को लेके हम ह्यूमन राइट्स CPDR में ज्वाइन किए हैं, ताकि हम लोग एग्रेसिवली काम कर सके आगे। थैंक यू। 10 ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস, আজকের দিনটা কিভাবে উদযাপন করছেন? देखिए, हम लोग हर बार 10 दिसंबर को यहाँ पर उपस्थित होते हैं, लोगों के बीच में हम लोग जुड़ते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में 10 दिसंबर को ही हम लोग काम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव के साथ हमेशा रहना चाहिए और पूरी कोशिश करना चाहिए कि सालों भर जितने भी ज़िले में, जितने भी अपने वार्ड में, जहाँ पे भी CPDR इंडिया का हम लोग का प्रोग्राम होता है, हम लोग जाएँ और जाकर लोगों के बीच में उनके साथ काम करें। এই যে অচিন্দ্র ঘোষ স্যার যে CPDR ইন্ডিয়াটা চালাচ্ছেন, এরকম অনেক CPDR ইন্ডিয়া গড়ে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। কি বলবেন? আচ্ছা, আমাদের সময় অনেক কম, देखिए, আমাদের এখনো क्या होता গান, है, নাটক हर এবং लोगों को আমাদের যারা যারা संस्था चलाने का নেতৃত্ব हक আছে है, তাদেরও দূর দূর থেকে अपने अपने রয়েছে, तरीके से সবাইকে सब काम ফেলিসিটেট करते করার हैं। রয়েছে। हम लोग जब আমি से CPDR इंडिया बनाए हैं, तब से हम लोग ने यही कोशिश किया है कि CPDR इंडिया के माध्यम से लोगों को पूरी तुम्हें तरीके तो से दुखों अच्छा और सहयोग मिले, नमस्कार। ताकि कहीं पे भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना বিডিআর पड़े। সেলের প্রেসিডেন্ট आज जो भी হিসেবে हम लोग ने काम किया है, उसके लिए हम लोग अपने जितने भी CPDR इंडिया के कार्यकर्ता हैं उनको हम लोग सम्मान करते हैं कि इसी तरीके से आगे काम करते रहे और CPDR इंडिया का नाम बढ़ाते रहे। আপনাদের मैं अशोक शर्मा, चेयरमैन CPDR इंडिया वुमेन राइट्स। থ্যাংক ইউ স্যার। हमारे कई केसेस जहां हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा था, कह सकते हैं कि जान का खतरा था, वहां पे ये हमारे साथ गए हैं, हमारे साथ ये खड़े रहे हैं, हर पल हमारा सुरक्षा के लिए इन्होंने काम किया है। सो इसलिए हम इन दोनों का यहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आगे भी हमारा साथ बना रहेगा और ये हमारा एक तरीके से CPDR इंडिया के पार्ट बन चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो, सोनू सिंह, सोनू इक्वल है। और দিন রাত আমি যখনই যেখানেই যাচ্ছি এই মানুষটা আমার গাড়ির সারথি। সেই মানুষটা সব সময় যখন আমার সাথে থাকে, আমি রাত বেরাতে যখনই ফিরি না কেন আমি নিশ্চিন্তে, আমি জানি আমি ঘর থেকে বেরিয়েছি, যত রাত হোক না কেন আমি নিশ্চিন্তে পৌঁছে যাব। হয়তো সবার প্রথমে বলি দাদাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জন্মদিনে। আজকে CPDR ইন্ডিয়ার মানবাধিকার দিবস পালন, অন্যদিকে আপনার জন্মদিন, কেমন লাগছে দুটো একসাথে মিলেমিশে? এত ভালো, মানে মঞ্চের উপরে যে কেক কাটা হলো, এর থেকে আনন্দ আর এত লোকের মধ্যে, এটা হচ্ছে সব থেকে বড়। CPDR ইন্ডিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আপনার কেমন কাজে কতখানি উৎসাহ বোধ করেন? আমাদের প্রায় 26 বছর হয়ে গেছে, আমরা এতে আনন্দই পাই। যারা খুব গরিব বলুন, যারা চারদিক দিয়ে প্রতারিত হয়েছে, তাদেরকে পাশে দাঁড়ালে মনে হয় ভিতর থেকে আনন্দ পাই যে তার পাশে আমি দাঁড়াতে লেগে ছোট্ট করে